Hello everyone, welcome to this video where we will be learning about ethics. So in this whole series, the idea is basically to comprehensively cover the ethics syllabus, which is paper 4 of UPSC from basics to advanced, and we will be targeting it to complete in around approximately 25 lectures. Here we will be including various case studies, PYQs, and this is for sure going to be a one-stop solution for your mains ethics preparation. Now, this is the syllabus of paper 4, GS paper 4 ethics. You can have a look at this and try reading this multiple times possible. Now, directly jumping into the initial topics, that is the very basic and foundational level topic. So इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हम हायर एडवांस लेवल का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक बेसिक्स अभी क्लियर करेंगे फर्स्ट वीडियो में, ताकि आगे फिर इस बेसिक्स पे वी कैन बिल्ड ऑन एंड गो टू एडवांस लेवल एंड ऑल्सो सी कि हाउ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस में एंड आंसर राइटिंग में अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं. तो द फर्स्ट कीवर्ड which is very important to know is values. अब what is value? Value होता है डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस. किसी भी चीज़ की आप वैल्यू कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू थिंग्स कि आप अभी इस टाइम पे या तो ये लेक्चर अटेंड कर सकते थे, अपनी पढ़ाई कर सकते थे, और या तो आप इस टाइम पे फ़ोन पे नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख सकते थे. अब इन दोनों में से आप क्या चीज़ को चूज करोगे, दैट विल बी डिसाइडेड अपॉन द वैल्यू दैट इट होल्ड्स. अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे नेटफ्लिक्स देख के एंटरटेन होके टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, और उसकी जगह अगर मैं पढ़ाई करूँगा एंड that will secure me a career and that has a more relative importance, so you will value studying rather than spending time on Netflix. So what is the degree of importance कि अभी के टाइम में मेरे लिए क्या ज़रूरी है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी ही नहीं है. ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. ह्यूमन ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल. मगर अभी मुझे क्या चाहिए. सो अभी द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस इज tilted towards me studying and focusing on my career. So that is the value, and जिस भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी we will be choosing that. So this is the basic meaning of value, the degree of importance attached with any subject, be it your mental health, be it your physical health, be it your career, be it your job. उसमें आप किसको कौन से प्रेफरेंस पे रखते हो, what is first for you, what is second for you, what is number 3 for you, that is the value. Now, three more small concept. One is moral value. Second is what is immoral versus what is amoral. So, what are moral values? Moral values are such values which helps a person to distinguish between what is right and what is wrong. Ab, for an example, killing a person, whether it is wrong or whether it is right, that solely depends upon the value, the moral value that the person upholds. For a normal person like you and me, killing a person on the lines of sorry, on the basis of our moral values, it might be a sin. And if we'll think about it, we can't even imagine of doing that. But for a terrorist whose moral values are far 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 different than what we hold, उसके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो सकती है कि killing a person is correct. So the moral value is basically uh, it is basically a distinguishing factor which helps us to select our action. So, for a terrorist, killing can be correct. For us, killing is wrong. So, how we decide what is correct or what is wrong? It is through these moral values. Now, what is immoral? Immoral is basically any action or any act or any conduct that a person does
and it violates the ethical principle. Now, for example, if my moral values tells me that stealing is not good, stealing is a bad thing, but after having a moral value that stealing is bad, and I still go to a shop and do a robbery there, so that is immoral. Or if my moral values tells me, my ethics tells me that hurting someone unnecessarily for your gain or for no purpose, it is bad, but I still choose to hurt someone, so that is something immoral where I am violating the ethical principles. Now the third word is amoral. हमने moral values समझ ली, हमने immoral क्या होता है वो समझ लिया. Now let us understand amoral. Amoral is any action or conduct जहाँ पे जो moral values हैं that are not consciously involved or that are absent. So for example, अगर मैं इन तीनों को एक ही साथ समझाऊं, moral, immoral और amoral को, so suppose let me add a page. Hmm, okay, so suppose with the example, this is a person, he's standing in a public place and this is a public wall and he's peeing on this wall. So knowing that thing that being in public place is wrong. So first his moral value should be that he should not openly defecate in the public place. And if he does defecate in the public place, that act will be known as immoral. Now consider that this person was a grown up man. He's mature and he's suppose his age is 30 years and he has a good experience of life and he is quite aware about the ethics, values and all those stuff. But there is a small kid, maybe he is less than 1 years of age. अब इस बच्चे को तो नहीं पता है ना कि क्या वैल्यूज हैं, क्या मॉरल्स है, क्या मॉरल होता है, क्या इमोरल होता है, एंड व्हाट आर द लॉज, व्हाट हाउ शुड वी लिव अ लाइफ, इसको इतना नहीं पता है. सो ही इज अनअवेयर अबाउट एनीथिंग. अब दिस सेम किड, सपोज इसको due to some reasons he was passing through this road and he felt like that he needs to urinate and he also urinates on this wall. The difference here is कि इसको ये पता ही नहीं है कि what is values, what is right. अब जब values नहीं पता है तो इसको right और wrong नहीं पता है, क्योंकि values were what, values were the degree of importance, है ना, जो help करता है हमें distinguish करने में कि correct क्या है और wrong क्या है. अब इसे, जब इसके पास ये फैक्टर ही नहीं है जिससे ये पता लगा सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सो इन द एब्सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज व्हेन ही इज बीइंग ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल, दिस एक्ट विल बी नोन एज amoral, जहाँ पे ही डू नॉट नो कि एक्चुअल में क्या सही था और क्या गलत था एंड एन एक्ट इज कंडक्टेड. आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर बिटवीन मॉरल, immoral and amoral. Now we can classify values in certain parameters. Values can be individual value. आपकी individual value हो सकती है कि you are a person who has a very high integrity. Integrity is मतलब, ये मैं examples दे रहा हूँ, बहुत तरीके से हम values को classify कर सकते हैं on the level of individual, on the level of family, on the level of society, on constitutional parameters, on professional parameters. So, for example, on an individual level, individual to individual values can vary. ये तो हमारी पर्सनल वैल्यूज, मतलब ये तो हमारे पर्सनल बिलीफ से डिराइव होती है, हमारे पर्सनल मोरल से डिराइव होती है. तो समवन कैन हैव अ वेरी हाई इंटीग्रिटी, समवन कैन हैव अ वेरी लो इंटीग्रिटी, है ना. और फैमिली वैल्यूज, फिर फैमिली वैल्यूज है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स. ये हम सब ने सीखा है और ये हमने हमारे एल्डर्स से सीखा है कि वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे हम सीख के हम हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं और हमसे सीख के हमसे छोटे जो हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं. सो दीज आर सम फैमिली ड्रिवन वैल्यूज. देन देर आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रिवन वैल्यूज. अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन वैल्यूज क्या है, हमारे प्रियम्बल में ही बहुत सारी दे रखी हैं. जस्टिस है, लिबर्टी है, सेक्युलरिज्म है ना, इसमें फेटर्निटी भी है, इसमें वैल्यूज ऑफ ब्रदरहुड भी है
कि सबको भाईचारे के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके टॉलरेंस के साथ रहना है. सो these are how these are some parameters how the values can be classified. Now, moving on towards our next topic, that is ethics. Abhi tak, if I give you a quick summary, what all we have done. First, we saw what is the meaning of value. Then we saw what is moral, then immoral, and then amoral. And then we have also seen classification of values. So these five topics, very short basic topics we have covered. Now we will be starting with ethics. अब ethics क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं. दिस डेफिनेशन यू कैन नोट डाउन, और इससे भी अच्छी डेफिनेशंस बहुत सारी बुक्स में या किसी फिलोसोफर के कोट्स में आपको मिल सकती है. बट ज़रूरी है कि पहले उसका मतलब समझ लिया जाए. डेफिनेशन तो बाद में फिर हम भी उस पर बिल्ड ऑन कर सकते हैं. तो मतलब समझने का और कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं पहले. व्हाट इज एथिक्स? सो बेसिकली एथिक्स इज नथिंग, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स टू जज ह्यूमन एक्शन. सपोज this is a person and he kills another person. अब ये चीज सही थी या गलत थी, ये आप कैसे जज करोगे? अब अगर हम दो लोग रखें, यहाँ पे एक टेररिस्ट है विच हैज टू जज कि किलिंग इज राइट और रॉन्ग, और यहाँ पे एक लेमैन नॉर्मल इंसान है हमारे और आपके जैसा, हु हैज टू जज कि भाई किलिंग ऑफ इनोसेंट इज राइट और रॉन्ग. तो ये इंसान, ये जो एक टेररिस्ट है, ये जो एक नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये दोनों कैसे जज करेंगे कि किलिंग इज राइट और किलिंग इज रॉन्ग? अब ये लोग जज करेंगे अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एथिक्स. सो इनका जो भी एथिकल कंडक्ट होगा या जो इनका एथिकल थिंकिंग होगी, वो हेल्प करेगी इनको जज करने में कि एक ह्यूमन एक्शन करेक्ट है या रॉन्ग है. तो हम किसी भी चीज़ को कैसे जज कर रहे हैं? अगर किसी ने करप्शन किया है तो वो सही है या गलत है? अगर किसी ने सिग्नल ब्रेक किया है, कोई लॉ तोड़ा है, वो सही है या गलत है? किसी ने रॉबरी की है, वो सही है या गलत है? किसी ने एग्जाम में फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के रैंक ले लिया, वो सही है या गलत है? दिस फॉर अस टू जज दैट एक्शन वी नीड सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स. तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को, दिस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड, इसी को हम कहते हैं एथिक्स. Those standards which helps us to judge any human action or conduct, we can call them as ethics. और इसीलिए एथिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ जजिंग अ ह्यूमन एक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे. किसी के लिए हो सकता है 200 रुपए की रिश्वत देना बहुत गलत चीज हो, और किसी के लिए हो सकता है कि वो ठीक हो. दैट डिपेंड्स ऑन देयर एथिकल मोरालिटी एंड देयर एथिकल थिंकिंग, ऑन देयर एथिकल बिलीफ. और वो एथिकल बिलीफ कहाँ से डिराइव हो रहा है, मतलब वो एथिकल बिलीफ क्या है? दैट इज द स्टैंडर्ड्स. तो अगर उनके स्टैंडर्ड्स हैं कि यार ठीक है, 200 रुपए की करप्शन इज नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन, तो दे विल जज दैट कंडक्ट एज करेक्ट. और अगर उन्हें लगता है कि दैट इज रॉन्ग, सो दे विल जज इट अकॉर्डिंगली. सो एथिक्स इज बेसिकली स्टैंडर्ड्स. दे आर प्रिस्क्रिप्शंस विच जज ह्यूमन एक्शंस. अब सोर्स क्या हो सकते हैं इन स्टैंडर्ड्स के? ह्यूमन कंसाइंस हो सकता है, थ्योरीज हो सकती हैं जो लोगों ने दी हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं जैसे एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, प्लेटो क्या कह रहे हैं. इन सब के बारे में हम अभी आगे चल के एक यूनिट आएगा थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स में, वहाँ हम पढ़ेंगे. तो फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, जैसे सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड है. अब फिलोसोफर्स, अब किसी फिलोसोफर ने कुछ बोला है, तो वो एथिक्स कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी बिलीव्ड इन हार्ड कोर नॉन वायलेंस. तो गांधी जी के लिए वर्सेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों में कई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, क्योंकि इन दोनों के स्टैंडर्ड्स टू जज अ ह्यूमन एक्शन, ये दोनों अलग थे, है ना? तो हो सकता है कहीं पे वायलेंस या कहीं पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वैलिड लगे नेताजी को, लेकिन हो सकता है वो चीज़ गांधी जी को वैलिड ना लगे, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ जजिंग दोज एक्शन आर वेरी
डिफरेंट। तो ये भी एक सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड है। फिलोसोफर्स, उनकी थ्योरीज, ह्यूमन कंसाइंस, फिर हमारी फैमिली भी बताती है, फिर लीगल सिस्टम भी बताता है। भाई आईपीएस जो अब बीएनएस हो गया है, बीएनएस में तो दे रखा है ना कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। इफ़ यू डू अ क्राइम, उसमें बता रखा है कि अगर आपने रॉबरी की या आपने थेफ्ट किया तो यू विल बी पनिशेबल, दैट ऑफेंस इज पनिशेबल। तो दैट लीगल सिस्टम विल ऑल्सो टेल यू कि यार वो ऑफेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसका अमेंडमेंट हुआ था 2022 में। तो पहले क्या होता था, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले क्या होता था कि बिलो 18 इफ समवन कमिट्स अ हीनियस क्राइम आल्सो ना, तो उसके लिए उतनी रिगरस पनिशमेंट नहीं थी, उनको माइनर कंसिडर किया जाता था एंड एक पूरा अलग प्रोसेस के थ्रू वो लोग निकलते थे। सो उस टाइप की जो 18 प्लस वालों की जो मेन जेल होती है, उनको वहां नहीं भेजा जाता था, उनको सम टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज देते थे। अभी क्या हुआ, उस अमेंडमेंट के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं कि अगर किसी कोई इंसान जो 18 इयर्स के अंडर एज का भी है, मगर अगर उसने मेच्योरिटी अचीव कर लिए, सपोज समवन इज 16 इयर्स ऑफ ओल्ड, 16 इयर्स ओल्ड, एंड ही इज मेच्योर इनफ टू नो कि राइट और रॉन्ग क्या है, और उसके बाद भी ही कमिट्स अ हीनियस क्राइम, तो उसको फिर एज अ अडल्ट ही आप ट्रीट करोगे। फिर आप बायोलॉजिकल एज के बेसिस पे उसको बेनिफिट, मार्जिन ऑफ एरर या बेनिफिट ऑफ डाउट आप नहीं दोगे उसको। सो दिस इज अ लीगल रिफॉर्म जो हमने लाया है। तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड ही है ना, कि सेम क्राइम, सेम कंडक्ट इंसान का सही है या गलत है, ये लीगली बता दे रहे हैं हम कि अगर उसने ये क्राइम कमिट किया है तो वो सही है या गलत है। तो लीगल सिस्टम भी बता सकता है। फिर सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड कल्चर भी हो सकता है। अब पेड़ काटना किसी इंसान के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पेड़ काटना सही हो सकता है, मगर देर इज अ बिश्नोई कमिटी जो बहुत हार्डकोर नेचर कंजर्वेशन में बिलीव करते हैं, उनके लिए ये चीज़ गलत है। तो उनके स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स कहाँ से हो रहे हैं, कल्चर से हो रहे हैं। फिर रिलीजन भी हो सकता है, जैनिज्म में देख लीजिए आप, बुद्धिज्म में देख लीजिए, हिंदुज्म में देख लीजिए। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है निष्काम भाव, आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। सो डूइंग ह्यूमन एक्शन, डूइंग योर कंडक्ट, बिना ये सोचे कि इसका व्हाट विल बी द आउटकम और व्हाट विल आई अचीव आफ्टर डूइंग दिस। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है काम करने का। ये कहाँ से सोर्स हो रहा है, ये रिलीजन से सोर्स हो रहा है। तो दीज आर बेसिकली द सोर्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अब एक और छोटा सा बट बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, एथिक्स वर्सेस मोरल्स, या एथिक्स और मोरल्स का हम डिफरेंस देखेंगे। अब एथिक्स हमने देखा कि एथिक्स में जो जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें थी, जो उनका सोर्स भी था टू जज ह्यूमन एक्शन। अब आप देखो, इसमें फिलोसोफर्स बता रहे हैं, उनकी थ्योरी बता रही है, फैमिली, लीगल सिस्टम, कल्चर, रिलीजन। इसमें कुछ भी, कोई सा भी चीज़ ऐसी आपको दिख रही है जो आपके इंटरनली आपके अंदर हो। ये सब तो एक्सटर्नल है ना, कि आप यहाँ पे हो, एक थ्योरिस्ट ने ये बोल दिया, फिलोसोफर ने ये बोल दिया, फैमिली ने ये करने बोल दिया, लीगल सिस्टम ने ये बोल दिया। लीगल सिस्टम ना होता तो पता नहीं आप कुछ और करते। आपके कल्चर ने आपको कुछ करने के लिए बोला है, आपके रिलीजन ने आपको कुछ करने के लिए बोला है, मगर इनमें से कुछ भी आपके कंसाइंस ने, आपने खुद से नहीं सोचा ना कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब तो आपके ऊपर एनफोर्स किया गया है थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यही सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है एथिक्स और मोरल्स में, कि एथिक्स आर एक्सटर्नली एनफोर्स्ड ऑन अ इंडिविजुअल। आपको लीगल सिस्टम बता रहा है कि सिग्नल जंप मत करो, आपको कल्चर बता रहा है कि नेचर कंजर्व करो, आपको रिलीजन बता रहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। मोरल्स ऑन दी अदर हैंड क्या होते हैं, ये इंटरनली इन्फोर्स्ड होते हैं। ये आपको आपका इंटरनल या सबकॉन्शियस माइंड कह लें, या आपकी कॉन्शियसनेस कह लें,
वो आपको बताती है कि अगर आज मैं ये लेक्चर अच्छे से नहीं देखूंगा, अगर आज मैं ये एथिक्स को अच्छे से मास्टर करके पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आई विल डेफिनेटली फेल इन द अपकमिंग एग्जाम। तो ये एक सेंस ऑफ इंटरनल फोर्समेंट है जो मोरल्स का सोर्स है, कि इसको एक्सटर्नली अप्लाई कोई नहीं करवा रहा है हमको। नो बडी इज टेलिंग यू टू वॉच द एथिक्स लेक्चर, नो बडी इज टेलिंग यू टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग, टू फोकस ऑन वर्किंग हार्ड। ये आपको खुद से आ रहा है ना कि यार मैं नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो दिस इज इंटरनली एनफोर्स्ड। लेकिन अगर आपको कोई बोले, इसका एक और एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, स्कूल में द टीचर्स यूज टू फोर्स यू टू स्टडी। दिल गिव यू होमवर्क, दिल गिव यू असेसमेंट्स, सॉरी असाइनमेंट्स। और एक तरीके से घर पे भी आते थे, तो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाती थी कि भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन आफ्टर कॉलेज आपसे कोई नहीं पूछता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप ये लेक्चर अभी एथिक्स का देख रहे हो या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो नोबडी हैज फोर्स्ड यू टू डू इट, ये आप खुद से कर रहे हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। एथिक्स आर एक्सटर्नली एनफोर्स्ड, मोरल आर इंटरनली एनफोर्स्ड। अब जो एथिक्स का एप्लीकेशन है और मोरल का एप्लीकेशन है, तो एथिक्स का यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर आप हिंदू रिलीजन में हो और श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है निष्काम भाव से कर्म करना है, तो ये अगर एक्सटर्नली एनफोर्स है तो ये तो सब पे एक समान एनफोर्स्ड है ना। ये किसी के लिए ऐसा तो है नहीं कि अ, वर्ण के हिसाब से अलग 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 तरीके से एनफोर्स है कि नहीं, किसी को निष्काम होके करना है, किसी को काम के लोभ में करना है। सो इट इज बेसिकली यूनिफॉर्मली अप्लाइड ऑन द पर्टिकुलर ऑन दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल बिलीवर्स, उन सब पे एक जैसा यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है इसका। मोराल का दे आर रिलेटिवली सब्जेक्टिव। अब रिलेटिवली सब्जेक्टिव क्यों है? रिलेटिवली सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये तो मेरे इंटरनल कॉन्शियस से आ रहे थे। किसी को लग सकता है कि इस टाइम पे पढ़ लेना अच्छा होगा, वरना बाद में मुझे गिल्ट होगा, या अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मुझे इसका हमेशा रिग्रेट रहेगा, तो इसलिए मैं अभी पढ़ लेता हूँ। और किसी में वो गिल्ट वो शेम नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। वो हो सकता है अपना टाइम वेस्ट करे, या हो सकता है जो भी करे, नॉट नेसेसरी कि अदर थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो जो भी करे बट बेसिकली हार्ड वर्क ना करे, अपने ऊपर काम ना करे। तो एक इंसान जो खुद के ऊपर काम नहीं करेगा, उसको हो सकता है गिल्ट आए और उसके बाद वो सुधर जाए और काम करने लगे। और एक इंसान हो सकता है कि उसको ना गिल्ट आए ना शेम फील होए और वो कुछ काम ना करे। तो ये रिलेटिवली सब्जेक्टेड है, ये सब्जेक्टिविटी होती है मोरल्स में। इनका यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है कि सबको ही एक साथ गिल्ट आएगी। सबको ही एक साथ गिल्ट आ रही होती तो सब लोग पढ़ने बैठ गए होते, या जो भी काम करते हैं वो करने बैठ गए होते। अब तीसरा डिफरेंस, जो सैंक्शंस होते हैं ना, अगर आप एथिक्स को वायलेट करोगे तो उसके सैंक्शंस एक्सटर्नली एनफोर्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हमने सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड देखे थे, लीगल सिस्टम था। अगर लीगल सिस्टम में इफ यू वायलेट समथिंग, फॉर एग्जांपल यू किल अ पर्सन, सो यू आर वायलेटिंग द लीगल सिस्टम। तो इसके लिए आपको एक्सटर्नली ही पनिशमेंट दी जाएगी। हो सकता है आपको इंटरनली भी बाद में बुरा लगे कि मैंने क्यों मार दिया, बट फॉर श्योर अगर इंटरनली बुरा ना भी लगे, अब कोई टेररिस्ट होता तो उसको तो क्यों ही बुरा लगेगा, बट एक्सटर्नली तो उसके ऊपर सैंक्शंस, उसके ऊपर पनिशमेंट एनफोर्स की ही जाएगी थ्रू अ इंस्टीट्यूशन और थ्रू अ अथॉरिटी। तो एथिक्स में होता है कि सैंक्शंस आर अप्लाइड एक्सटर्नली, वेर एज मोराल में क्या है? मोराल में इंटरनल अकाउंटिंग होती है। अगर मैंने एक हफ्ते पढ़ाई नहीं करी, अगर मैंने 50 आंसर्स नहीं लिखे एथिक्स के, तो आफ्टर माई मेंस और आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, आई नो कि भाई अब ये गिल्ट रहेगा, ये रिग्रेट रहेगा, और ये मेरी इंटरनल अकाउंटिंग है। इसके लिए मुझे आके कोई पनिशमेंट नहीं लगा रहा है, मेरे पे कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा है कि तुम्हारे 50 आंसर्स तुमने नहीं लिख के दिखाए तो अब फाइन भरो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा इंटरनल ही है। हो सकता है मुझे रात को नींद ना आए। तो द अकाउंटिंग हेयर इज इंटरनल, वेयर एज एथिक्स में
द सैंक्शंस आर अप्लाइड एक्सटर्नली। आई होप एथिक्स एंड मोरल का एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक एंड मोरल कैसे होता है, एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज सम टेररिस्ट, ठीक है, अम, ठीक है, नाम नहीं लेता, मान लो दिस इज सम टेररिस्ट, और एक पुलिस या फोर्सेस के साथ इसका एक एनकाउंटर हुआ जिसमें ही गॉट इंजर्ड। अब नाउ दिस टेररिस्ट, इसको इंजर्ड हालत में पुलिस लेके आती है आपके पास, एंड यू आर अ डॉक्टर। अब एज अ डॉक्टर आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एथिक्स एंड मोरल्स। आपके एथिक्स ऑफ द डॉक्टर क्या बोलेंगे, एथिक्स कहेगा कि भाई ह्यूमन लाइफ है, अगर इसको इलाज नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ही विल बी डेड। तो एज अ डॉक्टर जो आपके एथिक्स हैं वो कहेंगे कि यार ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ह्यूमन लाइफ की एक वैल्यू होती है ना। और हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वो भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है। तो ह्यूमन लाइफ जिसकी वैल्यू है, जिसकी डिग्निटी है, तो दैट डिजर्व्स अ ट्रीटमेंट। इसको हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, एज अ ह्यूमन देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट अ ह्यूमन डाइंग। अब इसको पूरा राइट है, और ये एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको नीडफुल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूं जिससे दिस पर्सन कैन क्योर। तो एथिक्स ऑफ अ डॉक्टर तो बोलेंगे कि भाई टेररिस्ट है या नहीं है, या जो भी है उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये मेरे सामने एज अ ह्यूमन स्ट्रेचर पे आया है, तो आई विल गिव हिम द ट्रीटमेंट। मेरे मोरल्स क्या बोलेंगे, मोरल एथिक्स तो एक्सटर्नल थे, मोरल्स क्या है, मोरल्स तो मेरे इंटरनल है। इंटरनल तो मोरल मेरा ये सोचता है कि ही इज अ टेररिस्ट, है ना, ये लोगों की, इनोसेंट लोगों की लाइफ लेता है, इसको वैल्यू नहीं है ह्यूमन लाइफ की, इसको लोगों की डिग्निटी की वैल्यू नहीं है। तो मेरा मोरल कहता है कि ही डजंट डिजर्व ट्रीटमेंट। भाई जब ये खुद 10 लोगों को मार के आ रहा है, तो अब ये जिए या मरे, ही इज, फॉर मी आई तो डोंट कंसिडर हिम अ ह्यूमन ओनली। कोई इंसान जो 10 लोगों को मार के आ रहा है, मैं तो उसे इंसान ही नहीं समझता, तो मरने दो, मैं नहीं दूंगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मेरे एथिक्स में और मेरे मोरल्स में एक क्लैश हो रहा है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। अभी इसका एक रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। द जो राम मंदिर वाला इशू चल रहा है अभी, कि राम मंदिर के ट्रस्ट में कुछ तो भी एलिगेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू सम सॉर्ट ऑफ करप्शन। अब उस चीज़ पे एसआईटी वर्क कर रही है, एंड दैट मैटर इज ऑल्सो आई थिंक विद इन द कोर्ट। मैंने आज ही एक आर्टिकल रीड किया था। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर जो एडवोकेट्स हैं, सो द एडवोकेट्स आर डिनाइंग टू टू रिप्रेजेंट दिस केस। वो लोग डिनाई कर रहे हैं क्योंकि देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर एथिक्स एंड देयर मोरल्स। ऐसे ही एक बार एक और इसकी केस स्टडी बताता हूँ। द गाय कसाब, है ना, धुरंधर में आपने देखा होगा। तो जब इसको डिटेन किया था, तो आर कॉन्स्टिट्यूशन सेट कि भाई इसको भी एक राइट है कि खुद को ये डिफेंड कर सके कोर्ट में। तो कोर्ट में उस टाइम कोई भी जो एडवोकेट था, वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सबके मॉरल वैल्यूज ही कह रहे थे कि ये टेररिस्ट है, सबने देखा है कि व्हाट ही हैज डिड, हम इसको क्यों रिप्रेजेंट करें। बट एथिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश ने बोला कि नहीं, इसको भी राइट है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे एडवोकेट्स ने जिनको ड्यू टू एथिक्स इसको रिप्रेजेंट करना भी पड़ा था, उन्होंने जो फीस थी ना, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि इसको रिप्रेजेंट हम कर दे रहे हैं क्योंकि इट इज आर एथिकल ड्यूटी, बट मॉरली वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद इट, तो हम ये फीस नहीं लेंगे। और अगर हमें ये फीस मिल भी रही है तो वी विल डोनेट दिस टू द विक्टिम फैमिली। तो दिस इज बेसिकली सम एग्जांपल ऑफ एथिक्स वर्सेस मोरल कॉन्फ्लिक्ट। ये समझ में आ गया होगा। एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है एथिक्स वर्सेस लॉ का, सॉरी, एथिक्स वर्सेस लॉ।
पहले तो ये समझ लेते हैं कि एथिक्स और लॉ में डिफरेंट क्या है, उसके बाद डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो जो एथिक्स हैं या लॉज हैं, ये दोनों तो सेम काम कर रहे हैं कि बोथ आर टेलिंग अस द राइट एंड द रॉन्ग, एंड बोथ आर बेसिकली गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ जजमेंटल पैरामीटर कि हम उस पे किसी भी चीज़ को जज कर सकते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। या दे आर ऑल्सो गिविंग सम पैरामीटर्स ऑफ द डूज एंड डोंट्स। लॉ भी हमें बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एथिक्स भी हमें वही चीज़ बता रहा है। ठीक है। तो अगर दोनों ही हमें राइट एंड रॉन्ग और डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एथिक्स वर्सेस लॉ में डिफरेंस क्या है। अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज कि ये बने कैसे हैं, हाउ दे आर मेड। सो हाउ दे आर मेड में जो लॉज हैं, लॉ तो एक ड्यू प्रोसेस से बना है। एथिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, एथिक्स कोई ड्यू प्रोसेस से नहीं बना है। अब जो भी लॉज हैं ये तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं ना। एक प्रोसेस है ना कि पहले कोई मेंबर आएगा, वो बिल प्रपोज करेगा, फिर वो बिल पे वोटिंग होगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वहां से प्रेसिडेंट उसे एसेंट देंगे, तो वो बिल जाके एक्ट बनेगा और फिर वो एक्ट से गवर्नेंस होगी। तो एक प्रोसेस है लॉ में तो कि हाउ इज अ लॉ मेड। एथिक्स में तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अब निष्काम भाव से कर्म करना है, इसमें ये चीज बताने के लिए कोई प्रोसेस थोड़ी इन्वॉल्व हुई थी। ये तो हमारे रिलीजन में इनग्रेव हो सकता है, ये हमारे कल्चर में। बिश्नोई कम्युनिटी अगर नेचर को कंजर्व कर रही है, तो वो कंजर्वेशन के लिए कोई प्रोसेस थोड़ी बनाई है उन्होंने कि वहां पे 10 लोग साथ में बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा गोल होगा नेचर कंजर्वेशन। वो उनके कल्चर में ही है, वो उनकी इनहेरिटेड वैल्यूज हैं। तो ये एक डिफरेंस है कि एथिक्स कैसे बने हैं उसका कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ लॉज कैसे फॉर्म होते हैं उनका एक ड्यू प्रोसेस होता है। आई होप दिस फर्स्ट डिफरेंस इज क्लियर। देन द सेकेंड इज एनफोर्समेंट। अब जो लॉ होता है, लॉ के लिए एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आपको मिलेगा जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाएगा और वॉयलेशंस पे सैंक्शंस भी लगाएगा और पनिशमेंट भी देगा। सपोज जैसे हमारे देश में जुडिशरी है, इफ यू ब्रेक अ लॉ, देयर इज जुडिशरी, देयर इज पुलिस, देयर इज अ सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप कुछ भी गलत करेंगे तो देयर इज अ इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल क्राइम करोगे तो ईडी है, क्रिमिनल नेचर का क्राइम करोगे तो पुलिस है। देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ अथॉरिटीज इन आवर नेशन। फिर वो केस बिल्ड करेंगे, देन दे विल टेक यू टू द जुडिशरी। आप पे सैंक्शंस लगाने के लिए या आपको प्रॉपर उस चीज के लिए पनिशमेंट या पेनल्टी देने के लिए देयर इज अ जुडिशरी। देयर आर सम क्वासी जुडिशियल बॉडीज ऑल्सो, वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ अथॉरिटी, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट करता है पनिशमेंट ऑन वायलेशन। वेयर एज इन द एथिक्स, इसमें एनफोर्समेंट के लिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि निष्काम भाव से कर्म करना है, मैं नहीं करूं निष्काम भाव से कर्म। मैं पढ़ाई करूं यही सोच के कि मैं ये पढ़ाई करूंगा तो मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैं बिना कर्म काम के बाद बिना कर्म मैं मतलब मैं जब भी कर्म करूं तो मैं निष्काम होके नहीं करूं, मैं तो काम का सोच के ही करूं। तो इसके लिए मुझे कोई एक्सटर्नल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थोड़ी है जो मुझसे इम्प्लीमेंट करवा सकता है कि भाई तुम अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम हार्ड वर्क बिना कोई भी फल की चिंता किए करो। मैं तो फल की चिंता के साथ ही करूंगा। ना मेरे को इसके लिए कोई इम्प्लीमेंट करा सकता है ये चीज, ना इसके लिए मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। सो जस्ट अ एग्जांपल कि एनफोर्समेंट में भी एथिक्स के एनफोर्समेंट के लिए देर इज नो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, वेयर एज लॉ के एनफोर्समेंट के लिए देर आर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्टिविटी। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि लॉ में सब्जेक्टिविटी कम होगी। लॉ सेम है, सबके लिए सेम है। अगर आपने मर्डर किया है, इट अप्लाइज यूनिफॉर्मली ऑन एवरीवन, सबके लिए सेम ही पनिशमेंट है, सेम ही प्रोसीजर है। एथिक्स में अलग अलग हो सकता है। कोई किसी भाव से काम कर रहा है, कोई किसी और भाव से काम कर रहा है। समवन हैज some different feelings and opinions with respect to one matter, and other person on the same matter can differ in opinion. So इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। देन स्कोप भी यू कैन अंडरस्टैंड कि स्कोप किस में ज़्यादा है। लॉ में तो एक बहुत नैरो स्कोप है ना।
एथिक्स में एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव है, क्योंकि लॉ हम इंसान ही बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर, मतलब, एक कहावत होती है कि इंसान, अब आई एम एग्जैक्ट नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फ्रेज, बट उसका मतलब यही होता है कि इंसान अगर कुछ चीज़ बना रहा है तो उसमें कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी। नेचर अगर कुछ चीज़ बना रहा है तो उसमें कमी नहीं होती है। तो एथिक्स आर जनरली वाइड, लॉज आर जनरली नैरो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एथिकली, मैरिज, इफ समवन इज टाइड इनटू अ मैरिज, मैरिज के बाद मैरिटल रेप, एथिकली यू नो इट इज रॉन्ग, है ना? बट व्हाट अबाउट लॉ? क्या इस पे कोई लॉ बना है अभी तक? आप सर्च भी करके देख लेना इस पे। केसेस पेंडिंग है इन ऑनरेबल कोर्ट्स, बट इस पे एज सच अभी हमारे पास कोई लेजिस्लेशन है नहीं। तो दो मैरिटल रेप इज रॉन्ग, ये हमारे एथिक्स बता रहे हैं। हम हमारे एथिक्स चाहें तो इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लॉ हमारा नहीं बता रहा है। लॉ इज नैरो, देयर इज नो लॉ अबाउट मैरिटल रेप। तो अगर आप मैरिटल रेप, मतलब, देयर आर केसेस पेंडिंग वेयर मैरिटल रेप हैज हैपेंड एंड उसकी कोई पनिशमेंट है नहीं, क्योंकि कोई लॉ नहीं है उस पे। सो द स्कोप इन द लॉ इज नैरो, द स्कोप इन द एथिक्स इज वाइड। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये, क्योंकि इस पे बहुत सारे पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, लॉज और एथिक्स के ब्रॉडनेस और क्लोजनेस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि लीगल हैं बट अनएथिकल हैं, क्योंकि लॉ तो नैरो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि अनएथिकल हैं बट लीगल हैं, अगेन क्योंकि एथिक्स वाइड है, लॉ बहुत नैरो है। एग्जाम्पल समझते हैं। 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। वॉज इट लीगल? ऑब्वियसली इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट वॉज लीगल, बट वॉज इट एथिकल? नो, इट वॉज नॉट। ऐसे कुछ और ऑप्शन देखते हैं। मनी बिल, बहुत सारे बिल्स को टू बाईपास लेजिस्लेशन एंड टू एक तरीके से लूप होल निकाल के किसी चीज़ को अगर आपको पास करवाना है, अगर आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है एंड यू डोंट हैव द मेजोरिटी और यू डोंट हैव दोज नंबर्स इन राज्यसभा, तो आप उसको एज अ मनी बिल प्रेजेंट कर दो। वहां तो फिर राज्यसभा की पावर्स ही खत्म हो जाएंगी, बस आप लोकसभा में पास करवाएं एंड देन इट विल बिकम एक्ट। राज्यसभा उस पे डिसअग्रीइंग मेजोरिटी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इट इज अ मनी बिल। सो यूज ऑफ मनी बिल। फिर ऑर्डिनेंस का मिसयूज आपने बहुत देखा होगा। गवर्नर का जो पॉकेट वीटो का पावर है उसका मिसयूज बहुत देखा होगा। तो दैट ऑल इज लीगल। एक गवर्नर चाहे तो स्टेट के बिल को अपना एसेंट दे, रख ले अपने पास, इट इज कंप्लीटली लीगल, इट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। लेकिन इज इट एथिकल? नो, इट इज नॉट। क्योंकि भाई, लेजिस्लेटिव को आखिर किसने चुना है? वहां के लोगों ने चुना है। अगर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो ये कहा जाता है या ये माना जा सकता है कि दैट इज द विल ऑफ द पीपल। एंड एथिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिनाइंग द विल ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी में डिनाइंग द विल ऑफ द पीपल इज अनएथिकल। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीगल बट अनएथिकल। बुलडोजर जस्टिस लीगल है या नहीं है? ऑब्वियसली लीगल है। लीगल कैसे है? हम सब लोग इंडिया में, मेजॉरिटी ऑफ अस, हम लोग जब घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिसीज, द लॉज, द रिस्ट्रिक्शंस, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत हम उनको बाईपास करते हैं। जैसे लोगों के एक प्लॉट साइज होता है, सपोज दिस इज दिस इज अ प्लॉट साइज जो उनकी ज़मीन है। अब वो इतने प्लॉट साइज पे घर बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक दहलीज, जो एक चबूतरा बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो छोड़ देते हैं। ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली रोड के इतने एरिया को आप इन्फ्रिंज कर रहे हो ना। ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है। तो अगर कोई ऐसी इन्फ्रिंजमेंट है तो लीगली उसको हटाना ठीक है। मान लो अगर कोई घर बना है, इट डज नॉट हैव द ऑफिशियल लीगल पेपर्स, इट डज नॉट हैव द डॉक्यूमेंटेशन, इट डज नॉट पे टैक्स, इट इज बेसिकली अ स्क्वाटरिंग और इट इज बेसिकली इलीगल। तो इसके ऊपर बुलडोजर चलाना
और इसको रिमूव कर देना वहां से, इट इज कंप्लीटली लीगल एंड दिस शुड बी डन। तो फिर ये बुलडोजर जस्टिस लीगल होने के बाद अनएथिकल कैसे हो जाता है? अनएथिकल ये तब हो जाता है जब आप ये सिर्फ एक इंसान के साथ करते हो। सपोज दिस इज अ कॉलोनी, यहाँ पे 8 घर हैं। इन 8 घर में से someone from this home has committed a crime. Up to tell the people or to give them a fake or a false sense of justice, इसके तो ट्रायल्स होंगे, इसको पनिशमेंट मिलने में, और इवन इसको पहले तो पकड़ो जाके, कोई पुलिस इसको पकड़े डिटेन करे, वो सब में टाइम लगेगा। तो जस्टिस के लिए एक सेंस ऑफ जस्टिस कैसे दे सकते हैं कि एक बुलडोजर भेजो इसके घर पे और इसका घर तोड़ दो। घर कैसे तोड़ा है? घर लीगली तोड़ा है, क्योंकि इसने जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस थे और जो पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए थी, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए थे, वो फॉलो करके घर नहीं बनाया। मान लो इसने घर बनाया है इतने एरिया में, लीगली इसकी ज़मीन इतनी ही थी, तो ये बाकी इसका एक तरीके से इलीगल एनक्रोचमेंट है ऑफ द लैंड। तो हमने बुलडोज़र चलाया, इसका घर तोड़ दिया। एक सेंस ऑफ जस्टिस लोगों को मिल गया कि हाँ भाई, किसी ने क्राइम किया, उसका घर तोड़ा, सब कुछ लीगल था। तो फिर ये अनएथिकल कैसे हुआ? अनएथिकल ये ऐसे हुआ कि यहाँ पे जो दूसरे लोगों के 8 घर है ना, इन लोगों के पास भी ऑन पेपर या उनकी रजिस्ट्री में सिर्फ इतनी ज़मीन है। तो इन सब के घर भी टेक्निकली लीगली हर तरीके से जैसे भी देखा जाए, इन सब के घर भी टूटने चाहिए, क्योंकि जिस बेसिस जिस जिस ऑफेंस के बेसिस पे इसका घर तोड़ा गया है, वो सारे ऑफेंस तो ये लोगों ने भी किए हैं, फिर इनका क्यों नहीं तोड़ा गया? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन समथिंग बीइंग लीगल एंड एट द सेम टाइम बीइंग नॉट एथिकल। इसका एक बहुत फेमस कोट है, यू कैन इवन नोट इट डाउन, यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द लॉ। कि भाई आप इंसान बताओ, उसके हिसाब से मैं लॉ का एप्लीकेशन चेंज करूंगा। इन सेम लोगों ने भी वही सेम चीज करी है, इनके लिए कुछ अलग एप्लीकेशन है, इस बंदे के लिए मेरा एप्लीकेशन कुछ अलग है। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल इसका है। अब मैं, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं एग्जांपल्स फटाफट बता देता हूँ। सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ये क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा, राजश्री है ना, और भी एक हाथ कोई सा ब्रांड है, वो जुबा केसरी वाला वॉट, और ये मैकडोनल्ड्स एंड जो भी अल्कोहल के ब्रांड्स हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब गवर्नमेंट का स्टांस और लीगल स्टांस हमारा अलग है कि भाई इस चीज़ को नहीं प्रमोट करना चाहिए, है ना, इट इज़ नॉट लीगल। बट ये लोग क्या बेचते हैं? राजश्री इलायची बेच रहे हैं, रजनीगंधा माउथ फ्रेशनर बेच रहे हैं, है ना, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल वो अल्कोहल के कंपनी के नेम, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड अपना पैकेज्ड वाटर बेचता है ना, वो नंबर 1 यारी करके उनका ऐड आता है, सब लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो दे आर नॉट सेलिंग देयर एग्जैक्ट प्रोडक्ट। सबको पता है मैकडोनल्ड्स क्या बनाता है, सॉरी मैकडोनल्ड पता नहीं, जो भी नाम है उस ब्रांड का, सबको पता है व्हाट राजश्री मैन्युफैक्चर्स, सबको पता है कि विमल क्या बनाता है। बट एडवर्टाइजमेंट जब वो करते हैं, तो वो अपने मेन प्रोडक्ट की नहीं करते हैं, वो एक सेरोगेट प्रोडक्ट की कर देते हैं कि भाई राजश्री इलायची। देर इज नथिंग इलीगल इन सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग राजश्री इलायची, बट इट इज अनएथिकल, क्योंकि भाई ये सेरोगेट एड है। आपको भी पता है कि आपकी इलायची कोई नहीं खरीद रहा, कोई नहीं खा रहा, या मतलब खरीद रहे, खा भी रहे होंगे, तो दैट इज नॉट द मेन पर्पस। आपका पर्पस आपको भी पता है और हमें भी पता है क्या हो रहा है। सो सेरोगेट एड हो गया। फिर रेड टेपिज्म एक अनदर एग्जांपल है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एथिकल होती हैं लेकिन लीगल नहीं होती हैं। एथिकल है बट इलीगल है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने किया था। सॉल्ट लॉ तोड़ रहे हैं, सॉल्ट लॉ तोड़ना, सॉरी सॉरी सॉल्ट लॉ तोड़ना तो इलीगल है, उस टाइम पे था, मगर क्या वो एथिकल था? हाँ बिल्कुल था। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है यूबीडीटी। यूबीडीटी इज बेसिकली अनबैंक डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज इफ अ पर्सन हैज़ टू डोनेट ब्लड टू अनदर पर्सन, हैज़ टू डोनेट ब्लड, तो ये इसको डायरेक्ट नहीं डोनेट कर सकता। द लीगैलिटीज, द लीगल प्रोसेस कि जिस पर्सन को ब्लड डोनेट करना है, ये एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ब्लड बैंक में जाएगा,
ये वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करेगा, वहाँ पे इसके टेस्ट्स होंगे, फिर इसका ब्लड एक बैंक में स्टोर करके रखा जाएगा, एंड जब इस टाइप के किसी इंसान को उस ब्लड की ज़रूरत होगी तो इसको ये ब्लड दे दिया जाएगा। ये डायरेक्टली इसको ब्लड नहीं दे सकता है, एक चेन है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू होके जाना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। मगर सो दिस इज बेसिकली गिविंग ब्लड डायरेक्टली इज इलीगल। लेकिन थिंक ऑफ अ सिचुएशन एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, जो फीमेल मदर होती है दे लूज ब्लड हैवीली, है ना, और उसमें मल्टीपल टाइम्स ब्लड लॉस की वजह से डेथ हो जाती है। अब ये अगर किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, आपने देखा होगा वो सुल्तान मूवी थी सलमान खान की, उसमें तो उनके बच्चे की डेथ हो गई थी क्योंकि ब्लड नहीं मिला था, और फिर वो ब्लड बैंक बनाने के लिए पैसे वैसे इकट्ठा करता है। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ब्लड बैंक है ही नहीं, तो लीगली अगर इनसे मैचिंग किसी का ब्लड ग्रुप है और वो पर्सन वहाँ पे है और वो अपना ब्लड इनको दे सकता है टू सेव हर लाइफ एंड मे बी उनके चाइल्ड की लाइफ भी, तो लीगली वो नहीं दे सकता, क्योंकि देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस, ब्लड बैंक में जाओ, टेस्टिंग कराओ। अब इस पे दो एस्पेक्ट्स हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज क्या बोलती हैं कि भाई अगर ये ब्लड डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगेगा तो देयर आर वेरियस डिसीजेस जो स्प्रेड हो जाएंगे, और ये बहुत लेवल पे बढ़ जाएंगे, जैसे एसटीआईज हैं। एसटीआईज एक बहुत मेजर इशू हो जाएगा अगर आप बिना टेस्टिंग के ब्लड ट्रांसफर कर दो तो। मगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो कि भाई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट नीड है, अर्जेंसी के बेसिस पे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ब्लड बैंक ढूंढने का या कहीं 200 किलोमीटर दूर ब्लड बैंक से ब्लड अरेंज करवाने का, तो क्या करें? तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट इज एथिकल। एथिकल है कि भाई डायरेक्ट ब्लड दे दो। मान लो कोई सोल्जर, अच्छा ये वाले जो यूबीडीटी के लॉज हैं ये सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस पे नहीं अप्लाई होते हैं, वहाँ अलाउड है कि अगर किसी सोल्जर को गोली लगी है, ब्लड लॉस हो गया है, तो ये सारा प्रोटोकॉल छोड़ो, डायरेक्ट उसको ब्लड दो जहाँ से मिले। मगर बाकी इन जनरल लोगों के लिए ये नहीं है। सो दिस इज एथिकल कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ब्लड लॉस की वजह से एक थ्रेट फेस कर रही है डेथ का, उसको कोई इंसान वो ब्लड उतने अमाउंट में प्रोवाइड करवा सके जिसकी वजह से उसका ये थ्रेट एलिमिनेट हो पाए। तो दिस इज ऑब्वियसली एथिकल कि यार ह्यूमन लाइफ की वैल्यू थी, हमने पढ़ा है, तो वो जान बचानी जरूरी है, बट लीगल नहीं है। तो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स सो फार वी हैव सीन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। हमने एथिक्स देखा क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स का सोर्स क्या होता है हमने वो देखा, फिर हमने एथिक्स और मॉरल के बीच में डिफरेंस देखे, फिर हमने एथिक्स और मोरल का कॉन्फ्लिक्ट देखा, फिर हमने लॉज और एथिक्स कैसे अलग हैं और उनके क्या डिफरेंसेस हैं वो देखे, फिर उसमें हमने कई एग्जांपल देखे कि कुछ चीज़ लीगल होके अनएथिकल हो सकती है और कुछ चीज़ एथिकल होके इलीगल हो सकती है। अब एक छोटा सा ये टॉपिक है, ये पीवाईक्यू में भी पूछा है, तो मैंने बस यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। इसका मैं सिर्फ मतलब समझा देता हूँ, आगे इसको दूसरे सब्जेक्ट्स में और दूसरे टॉपिक्स में बहुत स्पेसिफिकली भी हम डील करेंगे, अभी सिर्फ मतलब बता दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इट refers to the adherence to the core principle and values enshrined in the constitution, especially following the spirit of the constitution and not just the letter। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है। हाँ, मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमारे पास आर्टिकल 21 था, है ना। आर्टिकल 21 बोलता था राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या एंड डिग्निटी, आई एम फॉरगेटिंग, बट यही है मेन कोर प्रिंसिपल उसका, यही है लाइफ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या राइट टू लाइफ। तो अब इन स्पिरिट और इन लेटर में फॉलो करने का क्या डिफरेंस होता है? अगर हम इसको सिर्फ लेटर में फॉलो करते कि भाई जो लिखा है सिर्फ उतना फॉलो कर दो, तो ये आर्टिकल शायद सिर्फ इतनी ही सी चीज पे रह के सीमित हो जाता। मगर क्योंकि हमने इसको इन इट्स स्पिरिट फॉलो किया है, भाई राइट टू लाइफ है, तो क्या सिर्फ जिंदा ही रहना जरूरी है?
क्या हमारे पास उस राइट के साथ प्राइवेसी का राइट नहीं होना चाहिए? केएस पुट्टा स्वामी केस 2017 आई थिंक। क्या हमारे को ये प्राइवेसी का राइट नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे पास राइट टू मैरी, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, है ना? क्या हमारे पास ये सारे राइट्स नहीं होने चाहिए? हमारे पास बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर हम सिर्फ लेटर के हिसाब से जाते तो सिर्फ राइट टू लाइफ होता कि भाई जिंदा रह रहे हो आप, मगर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मेंशन्ड है। तो डिग्निटी के लिए तो हमको चाहिए कि हमारे पे प्राइवेसी हो, हमको क्लीन वाटर का एक्सेस मिले, हमको सैनिटेशन के लिए सुविधाएं मिले, हमें क्लीन एयर मिले, है ना, हमें क्लीन एनवायरनमेंट मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको मिलनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को अगर सिर्फ हम लेटर में फॉलो करा होता तो शायद वो हमारे पास नहीं होती, मगर क्योंकि हमने स्पिरिट में भी उस चीज़ को फॉलो किया है तो वो राइट्स हमारे पास है। दिस इज द वेरी बेसिक मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज एंश्राइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको सिर्फ स्पिरिट में, सॉरी, उनको सिर्फ लेटर में फॉलो ना करके हम उनको स्पिरिट में भी फॉलो करें। दिस इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नाउ आई एम गिविंग यू अ 5 minute break. You can pause this video, you can take screenshot, you can make notes, and you can spend some time recalling कि हमने अभी तक क्या क्या concepts पढ़े हैं। इसके बाद वी विल बी, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वी विल बी जस्ट डीलिंग विद इट, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। देन वी विल बी सीइंग कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, और फिर वी विल एंड दिस लेक्चर। इसके बाद का वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Okay, so let us now resume back. Our next topic of discussion was determinants of ethics. कि ये जो ethics हैं, ये जो standards हैं, ये जो prescription of standards हैं जो हमें बता रहे हैं कि कोई action या conduct ठीक है या गलत है, इन standards को determine कौन कर रहा है? तो बहुत ही easy है। I think this won't take long for us to complete. Religion इसको determine कर सकता है कि बुद्धिज़्म बता रहा है मध्य मार्ग सही है, एक्सट्रीम वे जाना गलत है। लेजिस्लेचर इसको डिटरमाइन कर सकता है, जैसे ट्रिपल तलाक को बैन किया लेजिस्लेचर ने। बेटिंग एप्स जो पहले लीगल थे, बाद में उनको बैन किया क्योंकि वो गलत थे, या गलत एक तरीके से यूथ का पैसा या यूथ को एक एडिक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे थे, जो कि ठीक नहीं था फॉर द नेशन ऑल्सो एंड फॉर द सोसाइटी एंड एज वेल एज फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो। फिर जुडिशरी बता सकती है, जैसे आर्टिकल 21 का एक्सपांशन हुआ, वैसे ही केशव नंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन दी। तो जुडिशरी ने डिटरमाइन किया एथिक्स। जुडिशरी ने बताया कि भाई आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी वो भी होना चाहिए। तो एथिक्स बीइंग डिटरमाइंड बाय द जुडिशरी। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, ये भी एथिक्स डिटरमाइन करता है। हो सकता है कि सपोज दिस इज अ पर्सन, ही इज अ क्रिमिनल। नाउ एथिक्स जो थे पहले, वो मानते थे कि भाई ये गलत इंसान है, इसको तो प्रिजन में रखना चाहिए, और इसके पास, इसमें कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है नहीं, तो इसको बस पनिश किया जाए। लेकिन हमने ये देखा आईपीसी से, जो पीनल कोड थी, पीनल कोड से बीएनएस न्याय संहिता पे हम आए, उसमें हमने देखा कि नहीं भाई, एथिक्स अब इवॉल्व हो रहे हैं, तो जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है वो इवॉल्व होगी और वो एथिक्स को अलग तरीके से डिटरमाइन करेगी। तो हमने क्या किया, जो पनिशमेंट थी, पनिशमेंट से हम आ गए रिहैबिलिटेशन पे। बेसिकली उसको कहते हैं रिट्रीब्यूशन के ऊपर रिहैबिलिटेशन को प्लेस करना, कि उसको एक, अल्टीमेटली अगर ये कोई बहुत सीरियस क्रिमिनल नहीं था, इसकी सज़ा मान लो 1 साल, 2 साल या 10 साल की थी, तो 10 साल बाद या 20 साल बाद ये वापस एक सोसाइटी में आता। अब इस सोसाइटी में ये आए तो ये दो एक्सपीरियंस लेके आ सकता है, या तो प्रिजन का बहुत गंदा एक्सपीरियंस जहाँ पे ही हैज टर्न आउट इनटू अ बैड पर्सनालिटी, इवन वर्स देन व्हाट ही वाज एक्चुअली, या तो फिर एक रिहैब पर्सन वापस आए,
जो वापस आके कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में, तो क्या आप बनाना चाहोगे? अर्लियर हम ये फॉलो कर रहे थे, अब हमने इसको हटाया, और ये भी तो ब्रिटिशर्स की देन है ज़्यादातर। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि रिहैब करें ताकि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो शिफ्टिंग फ्रॉम दिस अप्रोच टू दिस अप्रोच, दैट इज रिहैबिलिटेशन ओवर रिट्रीब्यूशन। तो ये भी डिटरमाइन करता है क्या एथिक्स रहेंगे। फिर सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग। अब एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। सती पहले एथिकल थी, होती थी, फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, अनएथिकल है। तो सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग पे एथिक्स भी चेंज होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, कि एथिक्स को डिटरमाइन कौन करेगा। अगर सोसाइटी करेगी तो उसकी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग करेगी, और वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। पहले सती ठीक था, अब अनएथिकल है। एलजीबीटी क्यू, पहले तो हम इनको मानते ही नहीं थे, मतलब प्रॉपर डिनायल ऑफ डिग्निटी है ये, जो जिस तरीके से उसको सोसाइटी देखती थी कि वी डोंट कंसिडर देम एनीथिंग। तो वो पहले वो चीज़ बहुत अनएथिकल थी। आज से 300-400 साल पहले आप चले जाओ, इवन 100-200 साल पहले भी जाओगे, तो दिस इज कंसिडर्ड बैड। बट अभी धीरे धीरे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, मेजॉरिटी ने तो शायद एथिकल नहीं कंसिडर किया है, बट वी आर ऑन अ वे टू गिव देम अ फेयर इक्विटेबल चांस, है ना। तो सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो डिटरमाइंस द एथिक्स। अब डिटर्मिनेंट्स बेसिकली होते क्या है? डिटर्मिनेंट्स आर बेसिकली द फैक्टर्स, है ना, जो शेप करते हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स को। कि अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगेगी, तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वही तो मेरे एथिक्स को शेप करेगा कि भाई ये चीज़ मुझे गलत लगती है, तो ये चीज़ गलत है। अगर मेरा डिटर्मिनेंट जो है, अगर मैं टेररिस्ट होता कोई इंसान, उसके तो डिटर्मिनेंट्स जो हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई किलिंग इज़ नॉट बैड। तो उसके एथिक्स कभी नहीं बोलेंगे कि किलिंग इज़ बैड, क्योंकि उसके डिटर्मिनेंट्स ही नहीं बोल रहे कि किलिंग इज़ बैड, तो वो करता रहेगा। सिंपल। तो कुछ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं? या तो इंटरनल हो सकते हैं कि भाई बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन, जैसे अशोका का हुआ था कलिंग वॉर में। उसने देखा इतना ब्लडशेड हो गया है, तो ही रिनाउंस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय वॉर। एंड आई एम उसको शायद धम्म घोष टू बेरी घोष, प्लीज क्रॉस चेक दिस, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसमें, बुद्धिज्म में शायद, कि कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर की बजाय कॉन्क्वेस्ट बाय धर्म या कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा। तो उस तरह से कॉन्क्वेस्ट करो आप, ना कि लड़ाई करके। तो ये तो उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन था ना, वो खुद ही चेंज हो गया इतना ड्रास्टिक ब्लड शेड देख के। तो इंटरनली डिटरमाइन हुआ, समझ रहे हो मतलब। तो इसमें डिटरमेंट था जो चेंज कर रहा है एथिक्स, इंटरनल था। इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, रिलीजन कुछ कह रहा है, लेजिस्लेचर कुछ कह रहा है। जुडिशरी ने जैसे मेनका गांधी केस में बोला कि भाई प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से हम शिफ्ट करके आ जाते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पॉलिटी में बेटर कवर करेंगे, अगर नहीं पता हो तो एक बार गूगल कर लेना। फिर डिटर्मिनेंट्स में एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कि भाई सोसाइटी बता रही है, सोसाइटी में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, वो बता रही है। कल्चर का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे बिश्नोई कमेटी वाला है, तो इनका तो इनको कल्चर बता रहा है ना कि नेचर का प्रिजर्वेशन करना है। तो इनका डिटर्मिनेंट एक्सटर्नल है, उस इंसान को पैदा होते से ही नहीं पता था इंटरनली कि नेचर कंजर्व करना है। उसको उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कल्चर ने बताया कि क्या करना है। फिर ऐसे ही कुछ कंटेम्प्रेरी डिटर्मिनेंट्स भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एआई जब से आया हुआ है, तो कॉपीराइट के जो मीनिंग है ना वो चेंज हुए। अब यूएस कोर्ट में एक केस था, जो क्लॉड एआई की पेरेंट कंपनी है वो लड़ रही थी। उसमें बेसिकली ये था कि क्लॉड एआई इज यूजिंग ऑल द बुक्स विच हैव बीन पेटेंट, कॉपीराइट बुक्स हैं वो, और उनको यूज करना अलाउड है नहीं, उनके नॉलेज को यूज करना विदाउट गिविंग देम ड्यू क्रेडिट। मगर अगर क्लॉड पे आप जाके पूछ रहे हो कि एक्स वाई जी बुक का मुझे समरी दे दो, अब वो एक्स वाई जी बुक की एक कॉस्ट है कि वो बुक मार्केट में मिलती है, मान लो। ओके, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज दिस इज अ बुक। अब आप एआई के पास गए, आपने एआई से पूछा कि मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, तो उसने इस बुक से वो कंटेंट लेके आपको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब भाई
और एआई ने इसको भी कुछ पैसा नहीं दिया वो चीज़ यूज़ करने का। अब ये बुक पे तो जिसकी थी उसने कॉपीराइट ले रखा था, वो इस बुक का मान लो चार्ज करता है 500 रुपये। तो टेक्निकली क्योंकि इसको ये बुक बनाने में मेहनत लगी होगी तो ये चार्ज करता है। अब इसको इसका चार्ज मिल नहीं रहा है, इसकी मेहनत फ्री में बट रही है, एआई भी इसको कुछ नहीं दे रहा है। तो कोर्ट में केस चल रहा था। तो कोर्ट में जब डिबेट आई कि भैया ये जो नॉलेज का यूज कर रहे हैं तो ये लीगल है या इलीगल है, तो यूएस कोर्ट सेड कि एआई इसमें से अगर कुछ रेफरेंस लेके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दे रहा है तो दैट इज लीगल। बट एआई अगर इस बुक को विदाउट परमिशन विदाउट पेमेंट स्टोर कर रहा है तो दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। सो इस तरीके से एआई के आने के बाद, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के बाद, कॉपीराइट के जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लॉड एआई यूजिंग कॉपीराइट बुक इज लीगल, यूज करना लीगल है बट स्टोरिंग दैट बुक एंड इट्स इंफॉर्मेशन इज इलीगल। ये यूएस कोर्ट ने बोला है। इसका बहुत एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू आईपीआर भी है। जब हम साइंस एंड टेक या इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आई विल टीच यू अबाउट आईपी राइट्स और इंडिया में हमने उसको कैसे अप्लाई किया है, चेंज किया है। तो दैट इज ऑल्सो इफेक्ट, उसको मैंने आगे लिखा भी है। कंटेम्प्रेरी डिटर्मिनेंट्स में ग्लोबलाइजेशन है कि मल्टीलैटरल कन्वेंशन हैं जिसने इंडिया का आईपीआर नॉर्म चेंज कर दिया है। एक अप्रोच में शिफ्ट ये आया है कि प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पे आ गए हम। पहले क्या होता था, एक साइंटिस्ट है, इसने कुछ प्रोसेसेस यूज करी एंड ही मेड दिस टैबलेट, ठीक है। अब जो कॉपीराइट मिलता था दैट वाज नॉट ऑन दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कॉपीराइट नहीं है। अगर आपके पास मार्केट में ये प्रोडक्ट है तो मैं इस प्रोडक्ट को लूँ, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाऊं और रिवर्स इंजीनियरिंग से इसकी एक कॉपी बना लूं, ठीक है, या इसके सिमिलर इफेक्ट वाला प्रोडक्ट बना लूं और उसको मार्केट में मैं सेल कर दूं, तो इसका तो लॉस हो जाएगा ना। इसकी तो चीज़ मैंने कॉपी कर ली क्योंकि जो पेटेंट था वो प्रोसेस पे था, इस प्रोसेस पे पेटेंट मिलता था। मैं ये प्रोसेस नहीं कॉपी कर सकता हूँ, मगर मैं इस प्रोडक्ट को लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़ा सा मे बी इस प्रोसेस में हल्का सा ट्वर्क करके कि ऐसे 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 कोई नई प्रोसेस बना के मैं भी जो है ये दवाई बना लेता हूँ। तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट तो जिस पे इसने मेहनत करी थी अब मैं भी बना सकता हूँ और मैं भी बेच सकता हूँ। तो हमने देखा कि यार ये चीज़ एक तरीके से गलत है। तो फिर हमने क्या किया, हमने शिफ्ट लाया फ्रॉम प्रोसेस पेटेंट टू प्रोडक्ट पेटेंट। कि अगर एक साइंटिस्ट है, उसने अपने जीवन के 10 साल लगाए हैं एंड ही हैज़ मेड सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन, सपोज फॉर अ वेरी सीवियर डिसीज, रेबीज के लिए इन्होंने कोई सी मेडिसिन इन्वेंट कर दिया, जो भी कर दिया। तो अब मैं अगर ये सोचूं कि मैं ये मेडिसिन उठाता हूँ, इस पे रिवर्स इंजीनियरिंग लगाता हूँ और किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू ये मेडिसिन मैं बना देता हूँ और मैं भी बेचूंगा और फिर मैं भी प्रॉफिट कमाऊंगा, तो नाउ दैट इज नॉट अलाउड। क्योंकि अब प्रोसेस अकेली पेटेंट नहीं है, अब द प्रोडक्ट इज पेटेंट। कि भाई ये प्रोडक्ट अगर इस इंसान ने बना दिया है तो जितने साल के लिए भी इसको मिल रहा है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, उतने टाइम तक ये प्रोडक्ट सिर्फ यही इंसान का इस पे पेटेंट होगा, इस पे कॉपीराइट होगा। यू कांट मेक दिस प्रोडक्ट बाय रिवर्स इंजीनियरिंग द प्रोसेसेस। सो ये एक चेंज हम लोगों के उसमें आया है एंड दैट इज अ organizational, sorry, that is a contemporary change and it has changed the ethics and it is a contemporary determinant which is changing the ethics। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। विल स्टॉप हेयर। इसके बाद हम आगे रिज्यूम करेंगे एथिक्स की और बेसिक्स कुछ टॉपिक्स समझेंगे। उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड एंड कवर द complete ethics syllabus in around 25 odd lectures। Thank you so much for watching।